students, कैसे हो? I hope you all are fine. So welcome back to my physics class. As usual, this is Sonali and I welcome you all in my YouTube channel जिसका नाम है Physics the Friction of Minds. So friends, in order to understand the physics through the details, through the concepts, just stay tuned with the channel that is Physics the Friction of Minds. So currently we are dealing with a chapter that is Structure of Atom and Nuclei. लास्ट लेक्चर्स में हमने बोर्स के पोस्टुलेट्स देखे, तो उसके बाद हमने देखा कि बोर्स ने हमें बताया था कि ये जो हमारा न्यूक्लियस है जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π है, so this electron will revolve in a fixed particular orbit. That orbit we call it as a stable orbit or Bohr's orbit. So जो इलेक्ट्रॉन इस बोर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की रेडियस और उस इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व हो रहा है उसकी वेलोसिटी हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव की थी. ठीक है. सो अब हमें क्या करना है, अगर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है, सो ऑब्वियसली इट विल हैव अ एनर्जी. सो टुडे व्हाट वी विल डू, वी विल डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द energy of electron in the Bohr's orbit. Okay, because the electron is in the field of positive nucleus, so it will have a potential energy. At the same time, electron is continuously revolving with a velocity v, so obviously it will have a kinetic energy, that is half mv square. So addition of these two energies will give us the total energy of electron in the Bohr's orbit. Okay, so फिर से हमें क्या करना है, एक एटम कंसीडर करना है. ठीक है. सो उस एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो है Z. ओके, लेट Z बी एटॉमिक नंबर एंड EB is what? Charge on electron. Charge on electron. So effective nuclear charge or charge of nucleus, we can say charge of nucleus कितना हो जाएगा, Z into E. ओके. सो जो इलेक्ट्रॉन हमने लिया है उसका मास है Me. Me is what? Mass of electron. उसके बाद Vn is equals to what? Velocity of electron and Rn equals to what? Radius of nth orbit of electron. Okay, so this is just the assumption, basic assumption that we need to follow or we need to write while in the start of the derivation. Okay, so we have considered one atom. Okay, so let Z be the atomic number of that atom, E the charge on electron. So the effective nuclear charge or the charge of nucleus is found to be Ze. The electron that we have considered जिसकी एनर्जी हमें निकालना है उसका मास है Me. जिस वेलोसिटी के साथ वो रिवॉल्व हो रहा है वो है Vn in the nth orbit and Rn क्या है, रेडियस ऑफ nth orbit. कोई भी डेरिवेशन हम इन जनरल nth ऑर्बिट के लिए निकालेंगे, फिर वहाँ पे n की वैल्यू अगर आप जो भी रख दो तो आपको रिक्वायर्ड ऑर्बिट के लिए वैल्यू मिल जाएगी. ओके, सो नाउ आई कैन से, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो. एज सी दिस इज न्यूक्लियस विच इज पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस इज योर इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. So as the electron is revolving in the field of positively charged nucleus, so obviously and at a distance, at a particular distance r, right? So this electron will have, this electrons, अब nth orbit की बात कर रही है, अगर nth orbit है तो ये nth orbit की जो radius है वो क्या हो जाएगी, Rn. ठीक है. So as your electron is revolving in this nth orbit in the field of positively charged nucleus, so obviously it will have a potential energy. And at the same time as this electron is revolving with velocity Vn, it will have a kinetic energy and hence I can say total energy of electron in nth orbit. In which orbit? In nth orbit is given by, let that total energy be denoted by En, where E is the total energy and the suffix n stands for, this is the total energy of electron in which orbit? Nth orbit in general. Okay, so this is nothing but sum of what? Kinetic energy and potential energy. So let this be equation number 1. Okay, so this is a simple assumption that we need to follow. Okay, अब आपको क्या करना है, एक चीज तो समझ में आ गई, टोटल एनर्जी निकालना है, मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालना है, और ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगी, total energy of electron in nth orbit. Okay,
So friends, as you again know, this is your nucleus having positive charge of suppose plus E, and this is your electron having a charge of minus E, okay, at a distance Rn. So as the electron is revolving in the field of positively charged nucleus, so at a distance Rn it will have electric potential. So I can say electric potential of electron is given by, in the field of this positively charged nucleus is given by, इलेक्ट्रोस्टैटिक आपने पढ़ा है 11th में. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1/4πε0 E, बट वी आर कंसिडरिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सो इट विल बी ZE, एंड अपॉन वी आर कंसिडरिंग nth ऑर्बिट, सो इट विल बी Rn. ओके, सो अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी. सो अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है potential energy of electron will be potential energy equals to होता है electric potential into charge on electron. Okay, so if you know the electric potential, then just multiply that electric potential by the charge on electron, you will get the potential energy of electron. And as you know, the charge on electron is negative, so here I have written minus E. Okay, so potential energy कितनी हो जाएगी बताओ. Potential energy equals to, what is electric potential? This much. What is that? ZE upon 4πε0. Okay, ZE upon 4πε0 Rn. This is electric potential, and charge on electron is minus E. So if we combine it, we can write the potential energy as minus ZE square upon 4πε0 Rn. So let this be equation number 2. So हमारा एक एम फुलफिल्ड हो गया. टोटल एनर्जी निकालने के लिए हमें काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले चाहिए. हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली इलेक्ट्रॉन की. अब हमें क्या करना है, आपका इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है विद वेलोसिटी vn, सो इट विल हैव अ काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम बोर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट यूज करेंगे. सो अकॉर्डिंग to Bohr's first postulate, what is that? What is Bohr's first postulate? Electron revolves around the nucleus and the necessary centripetal force is provided by what? Electrostatic force of attraction. So centripetal force is equals to what? Electrostatic force. Now centripetal force कितना होता है? mv square upon r. But the mass of electron is me, velocity is vn, radius is rn in general for the nth orbit, is equals to electrostatic force. Electrostatic force हमने देखा था, what is that? ZE square upon 4πε0 r n square. Okay, so ये एक्सप्रेशन हमने लास्ट डेरिवेशन में भी यूज किया है फॉर द रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट. ओके, सो हमें हमारा एम क्या है, वी हैव टू डिटरमिन द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी. अब थोड़ा सा लॉजिक लगाओ. काइनेटिक एनर्जी का इन जनरल फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर. यहाँ पे m की जगह पे m आएगा, v की जगह पे vn आएगा. अब आप ये इक्वेशन देखो, यहाँ पे me vn स्क्वायर तो हमारे पास है, राइट. सो हम क्या करेंगे, इस rn को इधर भेज देंगे और इस इक्वेशन को 1/2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे या फिर 2 से डिवाइड कर दे तो हमें ये टर्म मिल जाएगी. और ये टर्म मतलब ही क्या है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी. सो अब हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, विल राइट दिस me vn स्क्वायर. ओके, इस rn को इधर भेज दो तो ये देखो ये rn वैसे भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ पे क्या बचेगा, ZE स्क्वायर अपॉन 4πε0 because rn got cancelled. Okay, and now what you have to do, rn and this is rn square, so 1 and rn will get cancelled and here you will get rn. Okay, so now you want kinetic energy and that is half mv square, so just multiply on both sides by 1/2. so अगर हम करें तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ये 1/8. ओके, सो नाउ प्रोसीडिंग अहेड. अब मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है हमारे पास, व्हाट इज दैट,
this half mv Vn square, this is nothing but what? This is kinetic energy. So I can write kinetic energy equals to what? Ze square upon 8 pi epsilon naught Rn. So let this be equation number 3. So हमारी जो स्ट्रैटेजी थी उसके अकॉर्डिंग हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, काइनेटिक एनर्जी निकाल ली. बस अब ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो हमें क्या मिल जाएगी? इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट. ओके, सो आई कैन से यूजिंग equations 2 and 3, 1 imply, equation 1 implies. Substitute the value. En is equals to, what is kinetic energy? This much. What is that? Ze square upon 8 pi epsilon naught Rn. Okay, plus potential energy कितनी है? माइनस. So plus minus will be minus, and what is that? Ze square upon 4 pi epsilon naught Rn. Okay, so this way हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी निकाली और दोनों की एक्सप्रेशन टोटल एनर्जी में पुट कर दिए. नाउ वी सॉल्व इट बिकॉज वी वांट टोटल एनर्जी एंड दैट टोटल एनर्जी इज डिनोटेड बाय En. ये हमें निकालना है. ठीक है, सो En इक्वल्स टू, नाउ सी हियर, Ze स्क्वायर अपॉन 4 pi epsilon naught Rn कैन बी टेकन आउट कॉमन. सो Ze स्क्वायर अपॉन 4 pi epsilon naught Rn ये हमने कॉमन ले लिया. यहाँ से 4 pi कॉमन लिया है तो यहाँ पे क्या बचा? 1/2 माइनस यहाँ पे क्या बचा? 1. सो En इक्वल्स टू, दिस इज Ze स्क्वायर अपॉन 4 pi epsilon naught Rn, and you know that 1/2 minus 1 कितना हो जाएगा? It will be minus 1/2. Okay, so combining it we can write En equals to this negative sign as it is, this Ze square as it is upon, now 4 into 2 is again 8 pi epsilon naught Rn. Okay, so this way we got the expression of total energy. Let this be next equation number 4. Okay, again you can modify this equation in another form. See यहाँ पे Z constant है, atomic number, E is what? चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कांस्टेंट है. R इक्वल्स टू व्हाट? रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट, nth ऑर्बिट. ओके, और रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का एक्सप्रेशन हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में डिराइव किया था. सो अगर आप ये पहली बार देख रहे हो तो पहले रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट का जो डेरिवेशन है वो देखो, तभी आपको ये समझ में आएगा. और उसकी वैल्यू हमने निकाली थी, वो थी n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट. अगर आपने लास्ट लेक्चर प्रिपेयर कर लिया है तो आपको ये समझ में आएगा. ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमने कल डिराइव किया है, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई me Z स्क्वायर. राइट, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 5. So this is the value of radius of nth orbit. So I can substitute this value of Rn in equation number 4. So equation 4 imply, equation 4 imply En equals to, this En is equals to, Rn की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है तो रेस्ट ऑफ द टर्म एज इट इज लिख दो पहले. व्हाट इज दैट? माइनस Ze स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn. ठीक है, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Rn की वैल्यू है ये इतनी है, पर यहाँ पे 1/Rn है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा. तो ये कितना होगा? पाई me Z स्क्वायर अपॉन, ये जो E है ये हाथ सफिक्स में है, और ये E मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. ओके, अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट. ओके, सो नाउ अगेन सॉल्व इट. We are always interested in a reduced form of equation, right? So जो भी कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल आउट कर दो, और जो भी बचता है वो यहाँ पे लिख लो. अब देखो क्या क्या कैंसिल होगा. ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा? देखो, माइनस ये me, this Z into Z, right? So this will be
Z square. This is E square into E square will be e raised to power 4 upon नीचे ये 8 as it is, this n square as it is, this h square as it is, and this is epsilon naught into epsilon naught will be epsilon naught square. So I can write this as 8 epsilon naught square n square h square. Let this be equation number 6 and note it. जो अपडेटेड टेक्स्ट बुक है 12th फिजिक्स का, उसमें ये एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो सेकेंड स्टेप में ही दिया है, बट ये इतनी सारी स्टेप्स आपको फॉलो करना है तभी एक्सप्रेशन मिलेगा. टेक्स्ट बुक में जो ये एक्सप्रेशन दिया है वो जो सेकेंड स्टेप में डायरेक्टली लिखा है, बट ये इस तरह से सारे स्टेप्स फॉलो करोगे तब आपको ये इक्वेशन मिलेगा. और उसमें भी यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर के जगह पे इप्सिलॉन नॉट लिखा है तो वो प्रिंट मिस्टेक है. ओके, सो जस्ट करेक्ट इट. दिस इज इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू द ईच स्टेप. ओके, सो दिस वे equation 6 is required equation for total energy of electron in nth orbit of atom having atomic number 7. So finally this is the expression we got for the total energy of electron in the nth Bohr orbit. Okay, अगेन अगर आपको न्यूमेरिकल आता है कि आपको वैल्यूज गिवन है और अगर आपको टोटल एनर्जी निकालनी है तो फिर से इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज h की वैल्यू, इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, इतनी वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा. तो जैसे हमने रेडियस का जो एक्सप्रेशन था, रेडियस ऑफ ऑर्बिट का जो एक्सप्रेशन था उसे रिड्यूस किया था, उसी तरह से हम इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं. वो देखो कैसे. ओके, अब देखो यहाँ पे En इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वैल्यू है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वैल्यू है, इप्सिलॉन नॉट की कांस्टेंट वैल्यू है, प्लैंक्स कांस्टेंट की कांस्टेंट वैल्यू है. राइट, सो वेरिएबल क्या है z. जैसे ही एटम चेंज होगा एटम के साथ उसका एटॉमिक नंबर बदलेगा. और n क्या है, ऑर्बिट नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. जैसे ही ऑर्बिट चेंज होगी फर्स्ट सेकंड थर्ड अकॉर्डिंगली n की वैल्यू भी चेंज होगी. सो ये z स्क्वायर, दिस इज z स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है n स्क्वायर. These are the variable parameters, variable terms. Okay, it will change as the atom will change, this will change as the orbit number will change. But rest of the term जो है अब क्या बचा देखो, e raised to 4 upon नीचे बचा 8. This is epsilon naught square and this is h square. Okay, so now all the terms have a constant value. Again you know that mass of electron is 9.1 10 raised to minus 31 kg. E is what? Charge on electron. What is that? 1.6 10 raised to power minus 19 coulomb. Epsilon naught permittivity of free space. Its value is 8.85 into 10 raised to power minus 12 farad per meter. H is Planck's constant. Its value is 6.63 into 10 raised to power minus 34 joule second. ठीक है. और अगर आप सच में थियरी के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो लाइक सीईटी जेईई, सो यू मस्ट सबसे पहले आप ये करो कि सारे जो कांस्टेंट्स है फिजिक्स में, जितने भी कांस्टेंट है सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो ध्यान में रखो, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स एंड इन ऑर्डर टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. ओके, सो इफ वी सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन देन लेट दिस बी नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 7. यही इक्वेशन है ये, जस्ट हमने इसे इस तरह से मॉडिफाई करके लिखा. ठीक है, तो अगर ये सारे कांस्टेंट अगर हम यहाँ पे पुट करें सो विल गेट द वैल्यू 7 implies we will get the value En equals to minus of अगर ये सारे वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं तो हमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी वो होगी नेगेटिव 13.6 और ये z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर जो है वो रहेगा एज इट इज एंड दिस एनर्जी विल बी इन इलेक्ट्रोवोल्ट. ओके, तो देखो हमने क्या कर दिया, इतना बड़ा जो एक्सप्रेशन था उसे रिड्यूस कर दिया. अब ऑल टाइम न्यूमेरिकल्स में इतनी वैल्यूज पुट करके सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. इसकी वैल्यू इससे सारे कांस्टेंट की इस ब्रैकेट की वैल्यू आती है 13.6 एंड जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एटॉमिक नंबर z अकॉर्डिंग टू द गिवन एटम एंड पुट द वैल्यू ऑफ ऑर्बिट नंबर n अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑर्बिट. ओके, सो एज यू नो दैट हियर दिस 13.6 is constant. That means your energy of electron is directly proportional to square of atomic number.
and it is inversely proportional to square of principal quantum number. And this is very important equation for the numericals. So let this be equation number 8, let this be equation number 9. जैसे कि रेडियस के लिए मैंने बताया था, वैसे ही बहुत बार एमसीक्यूज में डायरेक्ट ये पूछा जाता है, बहुत बार सीईटी के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. 4 ऑप्शन इस तरह से दिए रहेंगे. En is proportional to n square, En is proportional to inversely proportional to n square, En is proportional to simply n inversely proportional to 1 by. So the correct option will be this. Okay, so you have to remember this. अब यहाँ पे अगर आपको न्यूमेरिकल में एनर्जी निकालनी है तो जो गिवन आइटम है उसकी वैल्यू पुट करो, जो ऑर्बिट मेंशन है उसकी वैल्यू पुट करो. यू विल गेट द एनर्जी बाय यूजिंग दिस सिंपल इक्वेशन नंबर 8. नाउ हियर कम्स नेगेटिव साइन. व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स? हर एनर्जी के हर एक्सप्रेशन में नेगेटिव साइन आया है. ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट फिजिक्स की जो लैंग्वेज है वो हमें समझनी बहुत ज़रूरी है. ये नेगेटिव साइन आ गया है ना, ये नेगेटिव साइन आ गया, बट ये क्यों आया? तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है दैट यू नो दैट दिस इज न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज. ओके, and in between there is what? There is a force of attraction, electrostatic force of attraction. So this negative sign indicates that ये जो इलेक्ट्रॉन है, this electron is bounded to nucleus because पॉजिटिव नेगेटिव के बीच क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से बाउंडेड है. सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस नेगेटिव साइन दैट द इलेक्ट्रॉन इज bounded to the nucleus by what? By electrostatic force of attraction. ओके, सो अब देखो यहाँ पे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोजन एटम, हम पर्टिकुलरली अगर हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, बिकॉज बोर्स एटॉमिक मॉडल में जो एक रेफरेंस एटम लिया है वो हाइड्रोजन एटम है. सो फॉर हाइड्रोजन एटम Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1. अगर Z की वैल्यू 1 होती है तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? स्पेशली फॉर द हाइड्रोजन एटम. फॉर अदर एटम गो विद दिस फॉर्मूला. ओके, En इक्वल्स टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर EV. ओके, so this is the expression for total energy of electron in nth orbit, especially for हाइड्रोजन एटम. ओके, अब देखो अगर इसमें भी किसी ने आपको ये पूछा दैट व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, देन फॉर फर्स्ट ऑर्बिट n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1. सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट, लेट इट बी डिनोटेड बाय E1 where n equals to 1, -13.6 अपॉन n स्क्वायर. n की वैल्यू है 1 का स्क्वायर होगा 1. सो दिस इज EV. सो दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. इफ समबडी आस्क यू दैट फॉर सेकेंड ऑर्बिट, तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू कितनी पुट करोगे? 2. इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ n as 2 here, so E2 दिस इज -13.6 अपॉन n मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 EV. सो इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट E2 इज इक्वल्स टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और ये वैल्यूज आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज जो है आपको ध्यान में रखना जरूरी है. अगर आप ऐसे स्मार्ट वर्क करोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो इजीली टैकल करता है. ठीक है, अगर कोई थर्ड ऑर्बिट की पूछे, so for third orbit of hydrogen atom what will be the energy of electron? So third orbit के लिए n की वैल्यू कितनी होगी? 3. Okay, so just substitute n equals to 3 here, so you will get En equals to -13.6, n is 3 का square 9. So if you solve it, so this is E3 is equals to, you will get this is -1.51 electron volt. Okay,
सो एक चीज आपने देखी होगी कि जैसे ही ऑर्बिट नंबर बढ़ रहा है, जैसे ही n इक्वल्स टू 1 2 3 हो रहा है, ये ऑर्बिट नंबर और यहाँ पे एनर्जी, सो जैसे ही ऑर्बिट नंबर इंक्रीज हो रहा है, सो यू जस्ट सी द वैल्यू ऑफ एनर्जी, सी द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनर्जी। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए नेगेटिव 13.6 थी, सेकेंड के लिए नेगेटिव 3.4 है, थर्ड के लिए नेगेटिव 1.51 है। मतलब जैसे ही इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट नंबर बढ़ रहा है वैसे ही क्या हो रहा है, एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब आप बोलोगे कि न्यूमेरिकल वैल्यू तो डिक्रीज होते हुए दिख रही है, बट आगे निगेटिव साइन है। निगेटिव सेंस में डिक्रीज हो रही है वैल्यू, मतलब पॉजिटिव सेंस में क्या हो रही है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इस तरह से। ओके, इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होगा, जो इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, इस फर्स्ट ऑर्बिट को कहा जाता है ग्राउंड स्टेट। इस फर्स्ट ऑर्बिट को कहा जाता है ग्राउंड स्टेट। सो इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में होगा, ग्राउंड स्टेट में होगा, तो उसकी एनर्जी कितनी है, नेगेटिव 13.6 eV। सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी लेस, बहुत कम एनर्जी होगी क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू एनर्जी की। एंड फॉर इलेक्ट्रॉन in second, third or any nth orbit. So in general we'll say for the electron in nth orbit, where n की वैल्यू जो है 1 छोड़ के 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है. So this is called as excited state. So अगर आपका इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम नहीं, कोई भी एटम के लिए अगर आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होगा, so that state is called as ground state. So this energy is called ground state energy. If your electron is in a higher values of n, that is second, third or up to nth state, these are called as excited state of electron. So respective energy is called as excited energy. Okay? So देखो ना, जैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गया, उसकी एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है पॉजिटिव सेंस में. सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीजेस. Okay, so it is pretty clear that if your electron is in the first orbit, that is in a ground state, it will have less energy. If your electrons are in a respective excited states, then electron will have increasing value of energy. Okay, so just remember this. Now, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता था, दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू द न्यूक्लियस बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बट हमें पता है जब करंट फ्लो होता है मतलब इलेक्ट्रॉन्स बाहर पड़ते हैं, राइट. सो अगर आपको इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है तो क्या करना होगा, आपको इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी सो दैट इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा. सो दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी. So binding energy is what? A minimum energy. What is that? A minimum energy which is required to be given to electron in ground state of atom. Not only for the hydrogen atom but for any atom. So it's a minimum energy needed or required to be given to an electron in the ground state of atom to set it free or to make it free from the nucleus. This energy is called as binding energy, or else this is also called as ionization energy. ionization energy मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है आपका, आयोनाइज्ड हो गया. ओके, सो अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन आती है, सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन. अगर आपको पूछा व्हाट विल बी द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हमें ये तो पता है हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी थी, टोटल एनर्जी नेगेटिव 13.6 eV. और अगर हमें इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है तो क्या करना पड़ेगा, इतने ही मैग्नीट्यूड की पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट. सो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम कितनी हो जाएगी, प्लस 13.6 eV.
बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम कितनी थी टोटल एनर्जी, मैंने अभी निकाल के दी थी, -3.4 eV। सो इतनी ही प्रोवाइड, मतलब आपका इलेक्ट्रॉन अगर सेकेंड एनर्जी और सेकेंड ऑर्बिट में है तो आपको क्या करना होगा, इतनी पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी तब वो फ्री होगा। सो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी 3.4 eV। सो अगर आप स्मार्ट वर्क करते हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी ध्यान में रखना है फॉर द ग्राउंड स्टेट, फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, जो भी एनर्जी होगी टोटल एनर्जी वही एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी है, सिर्फ माइनस के जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, कौन सी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज बी नेगेटिव एंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, अब सपोज ये एक स्टेट है n इज इक्वल टू 1, जिसे हम क्या कहते हैं, दिस इज ग्राउंड स्टेट, दिस इज ग्राउंड स्टेट, एंड सपोज दिस इज अनदर स्टेट, so this is n equals to 2, this is called first excited state, first excited state। ओके, जब आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो उसके पास कितनी एनर्जी है, 13.6 eV, नेगेटिव 13.6 eV। जब आपका इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में, फॉर द हाइड्रोजन एटम आई एम टॉकिंग अबाउट, इसके पास कितनी एनर्जी है, ये एनर्जी हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है इसके पास एनर्जी है नेगेटिव 13.6 eV, यहाँ पे नेगेटिव 3.4 eV। अगर आपका इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है, दैट इज कॉल्ड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो इसके पास कितनी एनर्जी होगी, नेगेटिव 1.51 eV। ये सारी वैल्यूज अभी हमने निकाली थी। ठीक है, सो अगर अभी आपको क्या करना है, सपोज यू हैव टू जंप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस ग्राउंड स्टेट टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, आपको इसको यहाँ से यहाँ भेजना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी लगेगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन एनर्जी, बिकॉज यू आर एक्साइटिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द अपकमिंग एक्साइटेड स्टेट, सो दिस इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन एनर्जी। सो हाउ विल यू डिफाइन एक्साइटेशन एनर्जी, कैसे डिफाइन करोगे एक्साइटेशन एनर्जी को, अगेन इट्स अ मिनिमम एनर्जी, minimum energy required to electron to set it or to take it from which state, from ground state to excited state is called, this energy is called as excitation energy, okay। so अगर आपको किसी ने पूछा कि what will be the excitation energy if the electron is taking from this ground state to the first excited state, so what will be the value of excitation energy, कैसे निकालोगे, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांजिशन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इन टर्म्स ऑफ फोटॉन। अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाता है तो ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स एनर्जी, राइट। सो दैट एनर्जी इज गिवन बाय, फॉर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, for transition of electron from ground state मतलब n equals to 1 to first excited state मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो इस केस के लिए अगर आपको किसी ने एक्साइटेशन एनर्जी पूछी तो कैसे निकालोगे, दैट एक्साइटेशन एनर्जी E is equals to क्या होगा, डिफरेंस of energy of electron in these two orbits, higher minus lower, बोर्स का थर्ड पोस्टुलेट। ठीक है, तो ये एनर्जी कितनी है बताओ, यहाँ की एनर्जी है नेगेटिव 3.4 माइनस लोअर एनर्जी, व्हाट इज दैट, नेगेटिव 13.6। ये नेगेटिव ऑलरेडी है और दोनों का सब्ट्रैक्शन करना होगा तब जाके हमें एक्साइटेशन एनर्जी मिलेगी। सो एक्साइटेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, negative 3.4 plus 13.6, so this will come out to be 10.2 electron volt, okay।
So this is the excitation energy of electron when it make a transition from ground state to the first excited state. अगर आपको किसी ने पूछा that what is the excitation energy of electron when it make a transition from ground state to this state, second excited state, तो कैसे निकालोगे? Similarly कैसे निकालोगे? ये E1 है, ठीक है, कैसे निकालोगे E को? यहाँ से यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है तो यहाँ की एनर्जी कितनी है? 1.51 माइनस ऑफ ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी है? 13.6. सो दिस विल बी नेगेटिव 1.51 plus 13.6, and whatever will be the answer, that will be the excitation energy when electron make transition from ground state to this state, third orbit, that is n equals to 3. We can also call it as a second excited state. ठीक है, तो इस तरह से ये था एक पॉइंट, दैट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोर्स ऑर्बिट. बट टोटल एनर्जी के साथ साथ हमने बाइंडिंग एनर्जी देखी, उसे कैसे कहा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी, हमने एक्साइटेशन एनर्जी देखी, और स्पेशली हाइड्रोजन एटम के लिए ही प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं. तो मैंने आपको हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट के लिए टोटल एनर्जी निकाल के दी. कोई भी ऑर्बिट के लिए आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग दैट इक्वेशन. ओके, उसके बाद एक्साइटेशन एनर्जी भी कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया. अगर आपको एक्साइटेशन एनर्जी फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द फोर्थ ऑर्बिट निकालना होगा तो पहले यहाँ की एनर्जी निकालो, फिर just make a subtraction between these two energy, you will get the excitation energy. Okay, so this lecture and or this video is very important as far as your MCQs or your exams are concerned, like CET or JEE. Okay, so go through this way, and if you will understand this particular topic, then you can tackle any question that may come in an exam. Okay, so prepare it, just watch the lecture once or twice, so every concept will be clear. फिर भी नहीं समझता है, you can mention your difficulty in a comment section. Okay, so next lecture में मिलेंगे next point के साथ. Till then, stay studious, stay curious. Thank you.